Hello everyone, my name is Neha Dikshit and I am working in a Lord Krishna International School as a science teacher. I hope you people are doing well and staying at home. So today I will be teaching for standard 8, and before starting this chapter, first chapter, crop production and management. Before starting this chapter, I want to ask you one people. I want to ask you one question. Why we need food? Like why we need food? We need food to get an energy, to process different functions in our body that carries out various functions in our body such as excretion, digestion, respiration. Okay, so in order to provide food for a very large population, proper production, proper management and distribution is very necessary for all this. So first topic is our agricultural practices. When plants of the same kinds are cultivated in one place on a large scale, it is called crop. जब plants एक ही type का plants एक जगह पे large scale means in a vast areas, बहुत सारे laborers उस पे work करते हैं. It is called a crop. Example will be wheat and wheat crop. Example will be wheat crop. So अलग एक ही type के crops grown होते हैं एक ही place पे, उसे कहते हैं हम crop. Okay, despite this diversity, see India is a very vast country. हमारे seasons बहुत अलग-अलग होते हैं, right? They carry out climatic conditions are very different from one place to another. अगर हम एक place से दूसरी place पे जाएंगे, तो हमें vast difference दिखेगा climatic conditions में. So despite of this diversity, two broad cropping patterns can be identified. Okay, so these are kharif crop and rabi crop. First, we will study about kharif crop. The crops which are sown in a rainy seasons are called kharif crop. From June to September, जो crops rainy seasons में हम grow करते हैं, उसे हम kharif crop बोलते हैं. एक seasons उनका होता है month. You people know rainy season कब होती है? तो June to September. Example will be paddy, maize, cotton, and etc. Next are rabi crops. The crops grown in the winter seasons are called rabi crops. October to March, जो crops winter season में grow करते हैं, उसे हम rabi crops कहते हैं. Month will be October to March. Examples are wheat, gram, pea, and mustard, etc. Okay. So two broad cropping patterns are there: kharif crop and rabi crops. Next, basic practices of crop production. See, हमें crop grow करना है, right? तो उसके लिए अलग-अलग steps होते हैं. हम कैसे crop production करेंगे? Directly हम soil में जाके crop को रख नहीं देंगे या seeds को रख नहीं देंगे. Okay? So there are various steps. First is preparation of soil. पहले हम soil prepare करेंगे. We will see about that in later. Then next is sowing. Adding manure and fertilizer. आपने देखा होगा farmers fertilizer add करते हैं. ठीक है? Next is irrigation, which is related to water. Then protecting from weeds, harvesting and storage. These all are the steps. These all are the process of growing a seed or a plant. So आप इसको ये points को आप इधर-उधर नहीं लिख सकते because ये step wise process है. आपको ऐसे first में ये, second में ऐसे ही आपको लिखना है. Okay? So next, preparation of soil. See, हमें अगर कोई crop grow करना है तो हम directly से grow नहीं करेंगे, हमें उनकी soil prepare करनी पड़ेगी. ठीक है? और वो एकदम basic और एकदम important point है preparation of soil. See, soil has to be loosened first. This allows the roots to penetrate deep into the soil. पहले हम soil को lose करेंगे. Lose क्यों करना है हमें? क्योंकि उसकी वजह से roots penetrate हो जाएंगे deep into the soil. Penetrate होना मतलब अच्छे से roots soil में घुस जाएंगे और अच्छे से में absorb करेंगे. The loose soil allows the roots to breathe easily even when they go deep into the soil. अब roots जो है वो बहुत deeply soil में चली गई है. So अगर हम soil को lose करेंगे तो वो उनको help करेगी breathing में. Obviously roots are also living things, right? Plants are also living things. तो उन्हें भी breathe करना है. So this helps to breathe. The loosened soil helps in the growth of earthworm and microbes present in the soil. See, soil में बहुत सारे microbes और earthworm होते हैं, ठीक है? और ये जो earthworm और microbes हैं, they are friendly microorganisms. ये help करते हैं plants को. कैसे help करते हैं? See, plants के वहाँ पे dead plants या dead animals पड़े होते हैं. तो what they do, this microorganism decompose that dead plants and animals. Okay? और उनका nutrient को
वापस सॉइल में दे देते हैं। ओके, दे जस्ट गिव बैक टू द सॉइल। तो सॉइल वापस से एब्जॉर्ब कर लेगा कोई न्यूट्रिएंट, इसलिए अर्थवॉर्म, माइक्रोब्स ये बहुत जरूरी है सॉइल में प्रेजेंट होने के लिए, और अगर हम सॉइल को लूज करेंगे तभी वो उसमें प्रेजेंट होंगे। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टीनिंग और प्लफिंग। हमने देखा अभी कि प्रोसेस लूजिंग, सॉइल को लूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो ये जो प्रोसेस है लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टीनिंग और प्लफिंग। Ploughing is done by an instrument or a tool which is known as plough, which is made up of a wood or an iron. Okay. The next is agriculture implement. अब हम इसमें देखेंगे कि बहुत कितने सारे implements, कौन से tools हम use करते हैं agriculture में. So before sowing the seeds, it is necessary to break soil clumps to get better yield. This is done with the help of various tools. See, पहले सीड्स को सो करने से पहले, मतलब हम ग्रो करने से पहले ये नेसेसरी है कि हम सॉइल क्लम्प्स को ब्रेक करें। सॉइल में बहुत सारे क्लम्प्स हो जाते हैं, सॉइल के बहुत सारे क्लम्प्स हो जाते हैं, तो उसे ब्रेक करना बहुत जरूरी है। टू गेट अ बेटर यील्ड मींस रिजल्ट, टू गेट अ बेटर रिजल्ट, बहुत ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो हो। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। अब हम बहुत सारे वेरियस टूल्स देखेंगे, कौन से यूज होते हैं। फर्स्ट इज प्लाव। This is the use for tilling the soil, adding fertilizer to the crops, removing the weeds and turning the soil. Plough जो है वो soil को tilling करने के लिए यूज होता है, fertilizer ऐड करने के लिए यूज होता है और weeds को remove करने के लिए यूज होता है। Now आपके मन में क्वेश्चन होगा कि weeds क्या होते हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, but I will just tell you a short that weeds are the unwanted microorganisms जो plants को खराब कर देते हैं, हमारे crops को खराब कर देते हैं, ठीक है। तो उसको रिमूव करने के लिए हमें प्लाव चाहिए होता है एंड टर्निंग द सॉइल। दिस इज मेड अप ऑफ वुड एंड इट इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स। ये जो है वुड से बने होते हैं प्लाव, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट प्लाव, तो वो वुड से बने होते हैं एंड दे आर ड्रॉन मतलब उनको चलाया जाता है विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ बुल्स। आपने देखा होगा एग्रीकल्चर टाइम पे या फार्मर्स फील्ड में कि फार्मर्स जो है वो ये यूज करते हैं, कोई भी अदर एनिमल्स भी हम यूज कर सकते हैं, कैमल और ये, तो पेयर ऑफ बुल्स आर यूज्ड फॉर दिस। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लक्चर। एक ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होता है वो टूल्स में, उसे बोलते हैं प्लक्चर। द मेन पार्ट ऑफ द प्लग इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड व्हिच इज कॉल्ड प्लग शिफ्ट। उसमें एक मेन पार्ट है जो लॉन्ग लॉग ऑफ वुड होता है जो डिगिंग के लिए काम आता है, व्हिच इज नोन एज प्लग शिफ्ट। Second is hoe. It is a simple tool which is used for removing weeds and using the soil. सबसे सिंपल टूल है, ठीक है। इसका डायग्राम्स आपको हम सेंड कर देंगे पीडीएफ के थ्रू। सो इसमें ये क्या काम आते हैं, रिमूविंग वीड्स एंड यूजिंग द सॉइल, सॉइल को लूज करने के लिए और वीड्स को रिमूव करने के लिए। इट कंटेन्स हैंडल। अब वो टूल्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, हैंडल होते हैं, बीम होते हैं, बैक प्लेट होती है और रॉड होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कल्टीवेटर जो आजकल फार्मर्स यही यूज करते हैं, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड। प्लाफिंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवर कल्टीवेटर। आपने फील्ड में देखा होगा कि जो फार्मर्स हैं जो एग्रीकल्चर करते हैं वो ट्रैक्टर यूज करते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ मॉडर्न वे। प्लाफिंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवर कल्टीवेटर। इसका यूजफुल क्या है, एडवांटेज क्या है, इट विल सेव लेबर एंड इट विल सेव टाइम। लेबर मीन्स कि बहुत सारे लोग नहीं चाहिए होंगे इसके लिए, ठीक है, और टाइम भी बहुत ज्यादा यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो कल्टीवेटर, प्लाफिंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवर कल्टीवेटर। ओके पीपल, आई होप यू पीपल अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल। So now we'll start to see sowing. Sowing is an important part of crop production. Sowing मतलब जो हम बीज ग्रो करते हैं, right? तो sowing is an important part of crop production. Before sowing, sowing करने से पहले good quality, clean and healthy seeds of a good variety are selected. हमें कौन सी सीड सिलेक्ट करनी है, जो good variety की हो, good quality की हो, जो हमें ज़्यादा yield दे, right? Farmers वही सीड प्रेफर करेंगे जो हमें ज़्यादा yield देगी, मतलब ज़्यादा ग्रोथ देगी। Tools. The tool used traditionally for sowing seeds is shaped like a funnel. जो sowing seeds के लिए हमें टूल चाहिए होता है, उसका शेप कैसा होता है, फनल की तरह। आपने देखा होगा फनल शेप्स आर लाइक फनल शेप। द सीड्स आर फील्ड, क्या करते हैं, पहले उसमें सीड्स फील कर देते हैं, उसमें पाइप्स होते हैं, राइट। तो थ्रू द पाइप सीड्स जो है वो नीचे आती है और यूनिफॉर्मली
इसमें क्या होता है, सीड ड्रिल, इट इज एन टूल, राइट। इसमें क्या होता है, सोविंग विद द हेल्प ऑफ अ ट्रैक्टर, ट्रैक्टर की हेल्प से सीड को सोविंग करा जाता है, और ये सीड्स जो है वो यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस पे और डेप्थ पे ग्रो की जाती है। क्यों इक्वल डिस्टेंस नेसेसरी है, सो दैट अगर इक्वल डिस्टेंस नहीं होगा तो प्रॉपर सनलाइट, वाटर या फर्टिलाइजर जो भी हम ऐड कर रहे हैं वो प्रॉपर्ली यूनिफॉर्मली सबको नहीं मिलेगा, ठीक है। देयर विल बी मोर ओवरक्राउडिंग ऑफ द प्लांट्स, सो दिस इज वेरी नेसेसरी। देन एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, this is another topic which is adding manure and fertilizers. See, to protect our plants we add manure and fertilizer. Farmers ये add करते हैं, क्यों add करते हैं, the substance which are added to the soil in the form of nutrient for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers. Plants बहुत अच्छे से grow करें, healthily grow करें, so that सारे nutrients उनको मिले, right? Our body also use or need many kind of nutrients so that हम healthily grow करें। तो वैसे ही plants को भी healthy grow करना है तो उनको nutrients ही होता है, और nutrients कहाँ से मिलते हैं उन्हें, fertilizers और manure से, okay? Next is irrigation. Irrigation means supply of water, water supply, okay? अब water is very necessary to grow a plant, right? 90% of water is needed to grow a plant. So irrigation is the supply of water to crops at regular intervals is called irrigation. Irrigation हम regular intervals में हम थोड़े टाइम पे उनको waters देते रहते हैं regular interval पे, that is known as irrigation. The time and frequency of irrigation varies from crop to crop, to soil and season to season. हर एक क्रॉप्स को एक टाइप का वाटर नहीं चाहिए, राइट। फ्रीक्वेंसी सबकी अलग अलग होगी, किसी को कुछ ज्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए, सॉइल भी डिफर करेगी, और सीजन डेफिनेटली, एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली कि सीजन, हर एक सीजन पे सेम टाइप के क्रॉप्स ग्रो नहीं होते हैं, सब क्रॉप्स का अलग अलग सीजन होता है टू ग्रो। देन सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, कहाँ से हमें पानी मिलता है, हम इरिगेशन करने के लिए कहाँ से पानी यूज करते हैं, सो वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड, लेक, रिवर्स, डैम्स एंड कैनल। This mostly are used in a village, right? Wells, tube wells, ponds, lakes, rivers, dams and canals. Now we'll say traditional method of irrigation. Traditional method of irrigation. Okay? So traditional method of irrigation के लिए the water in wells, lakes and canals. See, traditional method में क्या होता है, जो पानी river में है, ponds में है, canals में है, उन्हें हमें lifted up करना है, right? तो different regions में different methods use किए जाते हैं उस पानी को लेने के लिए। मोस्टली पंप्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। पंप्स जो होते हैं दे रन थ्रू लाइक विद द हेल्प ऑफ डीजल और सोलर एनर्जी, ठीक है, उसकी हेल्प से पंप्स जो होते हैं वो रन करते हैं, ऑल्सो रन थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, सो मोस्टली डीजल्स यूज किए जाते हैं। अब पंप यूज करें तो उससे क्या होगा, कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज इन दिस मेथड, सो दिस इज चीपर बट लेस एफिशिएंट। सी, इस मेथड्स में पंप भी यूज तो होता है बट कैटल्स और ह्यूमन लेबर भी ज्यादा होता है, मतलब ज्यादा लोग चाहिए होते हैं और कैटल्स में बहुत सारे एनिमल्स चाहिए होते हैं, तो उससे क्या होता है, वो चीपर तो रहता है, मतलब सस्ता तो हो जाता है बट लेस इफिशिएंट, ज्यादा इफिशिएंट नहीं होता है, ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं आता है, ओके। सो मोस्टली अब हम मॉडर्न मेथड यूज करते हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा है द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, अब अलग अलग वेरियस ट्रेडिशनल वेज हैं विच वी नोट, जिसमें पुली सिस्टम, आपने देखा होगा बेल्स एंड ट्यूब्स में हम पूल करते हैं पानी, राइट, तो दैट इज नोट पुली सिस्टम। चेन पंप है, पंप के थ्रू होता है, डिक्ली है, एंड लास्ट वन इज राहत, which is lever system. These four are the various traditional ways. Now we will see modern methods of irrigation. It includes sprinkle system and drip system. First we will study about the sprinkle system. This system is made useful on the uneven land where sufficient water is not available. जहाँ पे ज़्यादा पानी अवेलेबल नहीं होता है वहाँ पे ये स्प्रिंकल सिस्टम यूज किए जाते हैं। आपने देखे होंगे एक परपेंडिकुलर, लाइक द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल, एक परपेंडिकुलर पाइप होती है, सी ऐसी परपेंडिकुलर पाइप होती है जहाँ पे नोजल्स लगे हुए होते हैं जिससे स्प्रिंकल हो गए, जस्ट लाइक शावर बट इन अ पर्टिकुलर परपेंडिकुलर वे। तो स्प्रिंकल हो गए पानी ऐसे यहाँ पे स्प्रिंकल होते हैं, तो अनइवनली हर एक जगह पे हर एक क्रॉप को रेगुलर इंटरवल पे पानी मिलता है। स्प्रिंकल इज वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स, अलग बाकी के क्रॉप्स के लिए भी और हमें कॉफी
इससे हमें क्या पता चलता है कि पानी इस सिस्टम में बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता, देयर इज नो वेस्टेज ऑफ वाटर, सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। बेस्ट टेक्निक ऑफ वाटरिंग, क्या क्या वाटरिंग करते हैं, फ्रूट्स को करते हैं, प्लांट्स को करते हैं, गार्डन्स में करते हैं और ट्रीज को करते हैं। सो इन दिस सिस्टम वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल। ओके, नेक्स्ट वी विल सी प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। As I told you earlier, weeds के बारे में कि weeds are unwanted organism, microorganisms, ठीक है, जो हमारे plants को खराब कर देते हैं। So in a yield, many other undesirable plants may grow naturally along with the crop। हमारे crop के साथ बहुत सारे undesirable plants grow करते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं weeds। This undesirable plants are called weeds। The removal of weeds are called weeding। जो प्रोसेस होती है जिससे हम वीड रिमूव करते हैं, they are known as weeding। अब हमें वीड को रिमूव करना क्यों जरूरी है? Why weed removal of weed is necessary? क्यों? क्योंकि वो हमारे प्लांट्स को, हमारे क्रॉप्स को खराब कर देगी, राइट। यील्ड ज्यादा नहीं होगी, रिजल्ट ज्यादा नहीं होगी लेकिन हमें। और कब करते हैं हम रिमूव वीड्स को? द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड। वो फ्लावर और सीड्स प्रोड्यूस करे उससे पहले हम रिमूव करते हैं वीड्स को, ठीक है। वीड आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड्स। बहुत सारे केमिकल्स आर अवेलेबल इन द मार्केट व्हिच आर यूज्ड, तो उससे भी हम वीड्स को रिमूव कर सकते हैं। बट दिस केमिकल्स आर वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमंस। मतलब अगर फार्मर्स उसे वीड्स प्लांट्स पे अगर डाल रहा है, ठीक है, तो फार्मर्स को अपना फेस कवर करके रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज दे आर not healthy for the body, they cause us harmful। Okay, so weeds are also controlled by using certain chemicals, they are known as weedicides। Okay, understood? Harvesting, the cutting of crop after it is mature is called harvesting। मतलब crop grow हो चुका है, हमने पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स भी डाल दिए, मैन्योर भी डाल दिए, अब हम क्या करेंगे, crop को हार्वेस्ट करेंगे। यूजुअली इट टेक्स 3 to 4 months to mature crop, right। crop को mature होने में यूजुअली 3 to 4 months लगते हैं। तो हार्वेस्टिंग क्या होता है? दिस इज अ प्रोसेस ऑफ कटिंग ऑफ अ क्रॉप। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैन्युअली बाय सिकल और बाय मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। हमारी कंट्री में हार्वेस्टिंग या तो मैन्युअली मतलब बाय विद द हेल्प ऑफ अ मैन, विद द हेल्प ऑफ पीपल, ठीक है, की जाती है, या तो हम मशीन्स यूज करते हैं जिसे हम हार्वेस्टर कहते हैं। स्टोरेज, अब हो गया हार्वेस्टिंग भी हो गया, यहाँ पर हमने क्रॉप कर लिया, ठीक है, अब हमने क्रॉप ले लिया, अब स्टोरेज भी तो करना है उसे। तो स्टोरेज के लिए क्या करेंगे, हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर्स, ठीक है, जब वो हार्वेस्टेड ग्रेन्स होते हैं तो मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, दे आर लिटिल बिट ड्राई। सो इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स सीड्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग दे मे गेट स्पॉइल्ड। अगर हम उन्हें ड्राई नहीं करेंगे तो चांसेस है कि वो स्पॉइल हो जाए, ठीक है, बहुत मॉइस्चर होगा। तो फर्स्ट वी हैव टू ड्राई द crops, ठीक है, before storing the grains they are properly dried in the sun to reduce the moisture। हम sun पे उन्हें बाहर रख देंगे सूखने के लिए, तो with the help of the sun there will be a reduction in the moisture, ठीक है। So before the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them, then farmers store grains in jute packs and metallic bins। farmers जो है वो grains jute packs या metallic bins में भी store करते हैं। और अगर हमें लार्ज स्केल पे स्टोर करना हो, ठीक है, तो देयर आर सिलॉस एंड ग्राइंडर्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रैट्स एंड इंसेक्ट्स। अब रैट्स और इंसेक्ट्स होते हैं छोटे मोटे जो हमें मोस्टली, तो वो हमारे क्रॉप्स को खराब कर सकते हैं, ठीक है, तो लार्ज स्केल पे वो ऐसे स्टोर होते हैं। अब स्टोरेज भी हो गया। अब नेक्स्ट वी विल सी फूड फ्रॉम एनिमल्स। मेनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ द डाइट। वो अपने डाइट पे मेजर पार्ट में मोस्टली फिश खाते हैं। The animals reared at home or in the farms have to be provided with the proper food। जो एनिमल्स हम फार्म्स पे रियर कर रहे हैं, अभी जो हमें एग्रीकल्चर के लिए चाहिए, तो उन्हें भी हमें प्रॉपर फूड देना पड़ेगा। सो विद द हेल्प प्रॉपर फूड, शेल्टर भी देनी पड़ेगी, रहने की जगह भी देनी पड़ेगी, एंड केयर, अब हमें उनकी देखभाल भी करनी पड़ेगी। सो व्हेन दिस इज डन ऑन अ लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंडरी। जब वो लार्ज स्केल पे की जाती है तो उसे बोलते हैं एनिमल हस्बेंडरी। So I hope you people are getting this। तो हमने पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा? We have studied crop production, then the tools which are required for them, irrigation, right? Storage, harvesting, storage. We have learned different types of irrigation, like traditional methods, modern methods, right? Then harvesting,